Good morning everyone, I Vidyasagar welcome you all in the e-learning class of Modern International School Iswa. Today I am going to start subject history of standard 7 and this is on the topic towns, traders and craft person. Dear students, as we have discussed that how the different places name is originated on some incidents. Now we are going to discuss about the network of small towns. Dear students, as we know that from 8th centuries onward to the 18th centuries, the subcontinents, our southern part, that was dotted with a very small village, and these probably emerged from the large village. They were just divided into the smaller parts. Basically the Mandapika, it means Mandi. That was Mandipika, that was later known as Mandi. Which nearby villagers brought to sell their produce. It means you can say simply the market type. And they had also the market street called Hart. Nowadays we can also say the weekly market in a local village or nearby the village. Then these are like the Hart. It means like a street way, they all are established, and each and every one, those peasants who used to produce something, they used to come with their products and sell at that Hart. Basically that is the weekly market. And as well as the street for different kind of artisans such as potter, oil presser, sugar maker, toddy makers, smith, stonemason, while some traders live in town. Basically those peoples who used to produce the products and sell there, and they used to return back to their village. But some of the traders, they were permanent there and they used to sell there permanently. And basically they live in the towns. So many of them, they come from the far and they also, some of also come to near, like the buy the local article. They come here to buy the local article and send the product of distance. It means those product which was not found there, they used to sell there, and those product which was local, they used to buy it, like the horse, salt, camphor जिसे कैपूर कहते हैं, सैफरॉन, बिटल नट, पान, केसर, है सैफरॉन, केसर, एंड स्पाइसेस लाइक द पीपर, ठीक है, जिसे गोलकी कहते हैं. सो यूजुअली द सामंताज, बेसिकली द सामंताज हु वेर द जमींदार्स, दे ऑल्सो यूज टू बिल्ड द फोर्टिफाइड टाउन्स. फोर्टिफाइड यानी कि वो जो है किला बंद करते थे, है ना, यानी एक किसी खास जगह को किला बंद करके उसे सुरक्षित करते थे, और जो भी वहाँ पे अपने अपने सामान बेचा करते थे उनसे वो कर वसूला करते थे. सो दे यूज टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द आर्टिसन एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, समटाइम डोनेटेड द राइट. और कभी कभी किसी को जो है ये जो शक्ति होती थी टैक्स कलेक्ट करने की, वो किसी को देते थे और वो बदले में जो है टैक्स कलेक्ट करके देता था. ठीक है, कहते हैं कि विच हैव बीन बिल्ड बाय देमसेल्फ बाय रिच मर्चेंट्स. दीज राइट्स वे रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन दैट हैव बीन सर्वाइव्ड फॉर दिस डे. और इन चीज़ों को कभी कभी जो है बहुत अच्छी तरह लिखा जाता था, है ना, जो कि आज के दिन में काम दे रहा है. लाइक द टैक्सेस ऑन मार्केट्स. नेक्स्ट दैट इज़, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी मार्केट में जिस पे कि टैक्सेस लगाए जाते थे. लाइक द 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान. एक इंस्क्रिप्शन है स्टोन रिटेन जिसमें कि ये दर्शाया गया है, लाइक द टैक्सेस ऑन सुगर, जैगरी, ट्रेड कॉटन, कोकोनट, साल्ट, एरिका नट्स, बटर, सीसम ऑयल एंड क्लॉथ्स. इन सारी चीज़ों पे कर जो है लगाया हुआ था. देयर वेर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स हु सोल्ड द मेटल गुड्स, डिस्टिलर, ऑयल एंड कैटल फोडर एंड लॉस ऑफ ग्रेन. और जो है अधिक
संपन्न व्यापारी होते थे उनसे भी जो है ज़्यादा कर वसूला जाता था। ट्रेडर्स, द बिग एंड स्मॉल, एज वी नो द सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रेडर वेयर देयर, लाइक द बंजारास. Banjara, it means you can say those peoples who used to move in groups from one place to another place in order to sell their goods or buy some of the local goods. Okay, several traders, especially the horse traders, they basically form the association with the headmen who negotiate on behalf of with warriors who bought the horses. So basically they used to bring the barriers and they bought the horses. So basically while they were passing through the different kingdoms, then they also need the protection, so they make the guild for it. Okay, and they several such guilds in South India from the 8th century onward. It means they used to form the group which used to protect the these caravans, these Banjara traders, and the major guilds like these were the Manigramam and Nana Desi. Okay, so the Manigramam, they were basically within the peninsula, वो जो है देश के अंदर ही भागों में जो है व्यापार किया करते थे. And the Nana Desi, they used to trade with the Southeast Asia and China. तो वो दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे. बेसिकली द कम्युनिटीज़, अलग अलग जो समुदाय होते थे लाइक द क्षेत्रियर्स एंड मारवाड़ी ओसवाल, दे यूज टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री. वो जो है एक बड़े समृद्ध व्यापारी वर्ग के रूप में उभर कर आए. गुजराती ट्रेडर्स के साथ साथ जो है हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहराज, ये भी सारे जो है अलग अलग समुदाय से जो है वो क्या किए, एक मर्चेंट्स के रूप में उभर कर आए. बेसिकली दे ट्रेड विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. दे सोल्ड द टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन पोर्ट्स, इन एक्सचेंज ब्राउड गुड्स, आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, स्पाइसेस, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. तो अलग अलग जगह से जो है वो अपनी चीज़ों को बेचते थे. एज द वेस्ट कोस्ट, यानी कि जो पश्चिम का जो किनारा था, टू द अरब्स, पर्सियंस, चाइनीज, ज्यूज, सीरियन, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, वो जो है पश्चिमी जो किनारा था, जो कोस्ट था, ये इन देशों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र था. इंडियन स्पाइसेस क्लॉथ सोल्ड इन रेड सी पोर्ट्स, और भारत का जो मसाला और जो कपड़ा था, है ना, ये बहुत ही फेमस था. तो ये जो है सारे ये मध्य खाड़ी देशों में बेचे जाते थे, है ना. एज इट वॉज ऑल्सो परचेज बाय इटालियन ट्रेडर्स, है ना, इटालियन ट्रेडर्स के द्वारा भी परचेज किया जाते थे. लाइक द स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, कौन कौन से मसाले जो बेसिकली जो होते थे, लाइक द पीपर, सिनामेन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग. और धीरे धीरे जो है वो यूरोपियन किचन में हमारे मसाले धीरे धीरे छा गए. कहता है दे इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, है ना. और धीरे धीरे क्या किए कि वो जो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा आए हुए थे, तो उनका भी मुख्य मकसद यही था कि भारत से जो है मसालों को लेके जाना, और यहाँ जो सूती वस्त्र उद्योग है जो कि बहुत फेमस था, इन चीज़ों को बहुत विस्तार पूर्वक देखना और यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जाना. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.